میں نے کہا نہیں، مجھے رات میں ہی وہ پرزا اس جگہ پر ڈلیور کرنا ہے، اس کرین میں فٹ ہوگا اور کرین صبح کام پر لگے گی، وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ہمیں کانٹریکٹ ملا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس شخص نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور میں ایک مقامی شخص کو لے کر اپنے اس مقام کی طرف چلنے لگا۔ وہ واقعی میں بہت خوفناک تھا۔ ہم نے ٹارچز لے لی، اس شخص نے ایک چھتری لے لی اور میں نے چپل پہن رکھی تھی۔ اس مقامی شخص نے کہا کہ سر آپ کے پاس اگر جوگرز ہیں تو آپ وہ پہن لیں، آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس نے مجھے جوگرز پہننے کو کہا اور میں نے اپنے بیگ سے جوگرز نکالے اور پہن لیے۔ وہ اچھا ہی ہو گیا میرے لیے۔ خیر عدنان، رات کے ٹائم اس شخص کے ساتھ اس گھنے جنگل میں پیدل چلنا ایک بہت ہی خوفناک ایکسپیرینس تھا، لیکن بہت ایڈونچر بھی تھا۔ آپ یقین کریں، جہاں میں ڈر رہا تھا وہاں میں نے انجوائے بھی کیا، کیونکہ لائف میں پہلی دفعہ اتنے سنسان جنگل میں ایسے پیدل چلنا کہ آپ کے پاؤں کی کھس کھس جو زمین پہ لگ رہے ہوں وہ تک آپ کو ایسے واضح سنائی دے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہرحال وہ درخت بہت عجیب اور خوفناک لگ رہے تھے۔ ہم اس جنگل کے بیچ میں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ شخص مجھے مین جنگل سے لے کے جا رہا تھا کہ ایک شارٹ کٹ ہے، کہ یہی شارٹ کٹ ہے اور ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں، اگر ہم روڈ سے جائیں گے تو بہت لمبا پڑے گا۔ اس نے ہمیں گاڑی سے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے بولا ہم پیدل جائیں گے تو 5 منٹ کا سفر ہے۔ بہرحال وہ لوگ عادی تھے، لیکن میری تو جان نکل رہی تھی۔ اگر یہ مقامی شخص میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میرا خوف سے برا حال ہوتا۔ بہرحال میں اس جگہ پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا اس جگہ پر کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ہلکی سی آواز دی جو ہمارا سٹاف تھا۔ آگے سے وہ جو پٹھان بھائی سو رہا تھا اس نے غنودگی میں ہی مجھے اکنالج کیا، مجھے آواز دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں۔ بہرحال میں وہاں پہنچا اور میں نے اسے اس کا جو پرزا تھا اس کے حوالے کیا۔ میں نے کہا اس کو جلد سے جلد فٹ کرنا اور صبح اس کرین کو سروسیبل کرنا۔ خیر وہ خان صاحب بیچارہ نیند میں تھا، لیکن اس نے کہا ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور ہم تھوڑی نیند کرنے لیٹ گئے۔ بہرحال میرے پہنچتے ہی وہاں جیسے صبح ہو گئی ہو۔ اندھیرا تو تھا لیکن سارے لوگ آہستہ آہستہ اپنے اپنے بستروں سے اٹھے اور کام پر لگ گئے۔ خیر وہیں پر انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جو اب بہت ہلکی ہو چکی تھی۔ اسی آگ کو انہوں نے تیز کیا اور اس پر چائے رکھ دی۔ یقین جانے اس رات میں، اس ایڈونچر میں، اس خوفناک ماحول میں وہ چائے ایک الگ ہی ٹیسٹ دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے کہا جی مجھے اب بہت سفر کیا ہوا ہے اور مجھے جا کر سونا ہے، آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کرو اور صبح مجھے فون کر دینا جب آپ کی یہ کرین ریڈی ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد میں وہاں سے ہوٹل کی طرف اس مقامی شخص کے ساتھ واپس چلنے لگا۔ تقریباً رات کے 3، 4 یا 5 ہو رہے تھے۔ گھوپ اندھیرا، نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ، اور ہم ویسے ہی اس جنگل سے واپس آ رہے تھے۔ اب چلتے چلتے عدنان مجھے باقاعدہ فیل ہوا جیسے ہم دونوں کے قدموں کی آواز کے علاوہ بھی کسی قدموں کی آواز ہمارے پیچھے سے آ رہی ہے۔ میں نے مڑ کر تھوڑا سا پریشان ہو کر دیکھا تو جو مقامی شخص تھا اس نے فوراً میرے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے میرا چہرہ آگے کو کر دیا۔ میں یہاں کیسے سمجھا پاؤں کہ اس شخص نے بنا کچھ بولے میرا منہ پکڑ کر آگے کی طرف کر دیا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ بس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو اور نارمل چلتے رہو۔ اور یہی اس نے میرے کان میں آ کے گسپس کی اور کہا کہ بس خاموشی سے چلتے رہو، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، تمہارا شخص صحیح ہے، ہمارے پیچھے کوئی ہے لیکن یہ نارمل بات ہے، یہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یار عدنان، اس بندے نے یہ بات کہی، اب تک تو شاید مجھے صرف چیز کا ماحول کا اتنا خوف آ رہا تھا، لیکن جب آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ آپ کے علاوہ بھی اس جگہ پر کوئی اور ہے تو آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ بہرحال اس کے کہنے کے بعد میں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ وہ شخص میرا بہت بڑا سہارا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھتا رہا اور ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ شخص مجھے میرے ہوٹل کے مین گیٹ تک چھوڑنے آیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے اپنے روم کا ڈور اوپن کیا۔ آپ یقین کریں رات میں وہ ہوٹل بھی اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے روم کا ڈور اوپن کیا تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ سے اس کمرے میں گیا ہے۔ اب کمرے کی لائٹس آف تھیں، میں نے ساری کمرے کی لائٹس آن کی، میں نے واش روم میں دیکھا، میں نے ہر جگہ دیکھا، پر مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اور آپ یقین جانے عدنان، میں بہت حلفین کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آئی تھی جیسے کوئی ایک لائٹ سی، کوئی ایک
शैडो नुमा कोई वुप करके मेरे पास से गुजरा और रूम के अंदर गया। मैं बता नहीं सकता वो क्या सिचुएशन थी। बहरहाल मैंने वहीं रुकना था, वहीं सोना था, और मैंने दुआएं कलमे आयतल कुर्सी पढ़ के अपने पूरे रूम में फूकी। लाइट्स ऑन करके हर जगह चेक की, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। जब तसल्ली हो गई तो अपने बेड पर लेट गया। बेड पर लेटने के बाद बस सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब कुछ और होना बाकी था। मेरे बेड के नीचे से मुझे विस्परिंग की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हल्की सी आवाज में विस्पर कर रहा है। मैंने गौर से सुनना चाहा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है। काफी ज्यादा ध्यान लगाने के बाद मुझे फील हुआ जैसे उसने मेरा नाम लिया, रिजवान, रिजवान, रिजवान। दान यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने फौरन से दरवाजा खोला और मैं बाहर निकल गया। रिसेप्शन पे गया। मैंने उस शख्स को कहा कि बस मुझे इस रूम में नहीं रहना। उस शख्स ने कहा कि आपका रूम नंबर? मैंने कहा रूम नंबर 310। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जो कि अब चेंज हो चुका था, नाइट ड्यूटी पे दूसरा था, उसने कहा कि आपका रूम नंबर 311 तो नहीं? मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो दिन में थे ही नहीं, तुमने तो अभी मुझे देखा। तो कहने लगा कि रूम नंबर 311 के जो भी गेस्ट होते हैं उनको अक्सर ये मसला होता है और वो अक्सर अपना रूम चेंज कराने के लिए कहते हैं। तो खैर अदान भाई, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत डर लगा। जो बातें मैं सोच भी नहीं सकता था वो मेरे साथ हुई। लेकिन मैंने उस जगह पर बड़ा एडवेंचर भी किया। 3-4 दिन और मुझे वहां रुकना था। मैंने किसी और होटल में स्टे लिया। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और उसके बाद मैं दिन में पैदल ही उस मेन रोड से जाया करता था अपनी लोकेशन पे। मैं उस जंगल का रास्ता नहीं लेता था। और हमारा जो स्टाफ था वहां पर, उसके भी कुछ वाक़यात हैं जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। वो भी अक्सर कहते थे कि हमें रात भर अक्सर काम कर रहे होते थे तो दूर से हमें दरख्तों के तनों के पीछे से अंधेरे में सिर्फ 2 आंखें दिखाई देती थी जो झपकती थी, ऐसे जैसे कोई नियॉन लाइट लगी हुई और दूर से वो ब्लिंक कर रही हो। कई दफा उन्होंने कहा कि हमने ये एक्सपीरियंस किया। वो पठान भाई थे और बड़े मजबूत दिल के थे। वो डरते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे हमें फील होता है कि हमारे आसपास कोई हमें देखता है हमें काम करते हुए, और कोई अक्सर हमें गुजरता हुआ भी फील हुआ। जब हम ध्यान देते हैं तो हमें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे आसपास है, कोई मूव कर रहा है, कोई इधर से उधर चल फिर रहा है, लेकिन हम उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी वजह से हम यहाँ काफी दिन से काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, मैं वैसे तो पाकिस्तानी हूँ लेकिन कई सालों से यूरोप में हूँ और यहीं पर मैंने शादी कर ली अपने चचा की बेटी से और यहीं पर मेरे बच्चे भी हैं। हमें नेशनलिटी मिल गई और हम यहीं रहते हैं। हम पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं और वीकेंड पे अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक असूल है कि लाइफ को एंजॉय करते हैं, लाइफ को गुजारते नहीं है। हम माना कि पूरा हफ्ता बहुत टफ होता है, काम से फुर्सत नहीं होती, लेकिन जो वीकेंड होता है उस पर फुल मौज मस्ती और खूब एंजॉय, चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करें चाहे अपनी फैमिली के साथ। तो हम 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप है जो कि सब पाकिस्तानी हैं, जिनमें एक इंडियन है और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। अब हमारे पास एक कैंपिंग वैन है, हम लोग अपना सारा सामान उसमें डालते हैं और हम लोग निकल जाते हैं उन पहाड़ों में और एक लंबे सफर पर, जहां हमें सूट करता है किसी अच्छी जगह पर, और वहां पर स्टे करते हैं। हम एक कोई जगह नहीं फिक्स करते, हम हर रात हर दिन डिफरेंट प्लेसेस सिलेक्ट करते हैं। जो जगह हमें बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो उस जगह पर हम ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। तो एक दो हम ऐसे ही एज यूजुअल वीकेंड पे अपने सफर पर निकले। रास्ते में हमें एक गैस स्टेशन नजर आया जो कि वीरान जगह पर था। हमने वहां पर फ्यूल डलवाया और थोड़ी देर वहीं पर फ्रेश वगैरह होने चले गए। वो गैस स्टेशन भी वीरान था और सेल्फ सर्विस थी। यार हम में से 2 लोग फ्यूल डाल रहे थे, बाकी फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आए, किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने गौर किया तो सामने झाड़ियों में कोई शख्स था जो हमें देख रहा था। वो शख्स बिल्कुल साकित खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानियत थी। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, यानी कि आंखों की जगह एक ब्लैक गहराई थी और चेहरे की और होंठों की जगह भी ऐसा ही था।
वो शख्स हमें देख रहा था और बड़ा क्रीपी शख्स था। उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे थे, एक्सप्रेशन एक ही तरह थे। मैंने फिलहाल अपने दोस्तों को भी उस तरफ मुतवज्जो नहीं किया, क्योंकि शायद मैं उस तरफ मुतवज्जो करता तो वो कोई भी रिएक्शन दे सकता था। मैंने खामोशी से बस उसे देखा। सब दोस्त जब गाड़ी में बैठ गए तो बस मैंने गाड़ी चला दी और हम लोग उस जगह से मूव हो गए। बड़ा अजीब सा शख्स था, दिमाग में वही चल रहा था। काफी देर सफर करने के बाद हमें एक जगह पसंद आई जो बहुत खूबसूरत जगह थी। वो एक झील के किनारे हमने अपनी कैंपिंग वैन रोकी। अब दोस्तों ने कुछ बाहर कैंप्स भी लगा लिए। सब अपने अपने कैंप्स के अंदर लेटे हुए थे। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर चल रहा है, किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। माहौल पहले तो बहुत खुशगवार था, सब गप्पे लगा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद जब ये आवाज सुनाई देने लगी तो सब डरने लगे। मैंने टॉर्च ली और फिर क्योंकि बाहर हमने आग जला रखी थी, वो आग भी अब थोड़ी मद्धम हो गई थी, लेकिन उस आग की रोशनी में ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके सामने से गुजरा और उसका साया हमारे कैंप के ऊपर वाज़िह हुआ। जैसे वो गुजर गया, उसके गुजरे कुछ ही सेकंड हुए थे कि मैंने टॉर्च ऑन की, अपने कैंप की जिप ऑन की और बाहर को टॉर्च मारना शुरू कर दी दोनों तरफ। मैंने देखा जो हमारी कैंपिंग वैन थी, जहां अभी कोई नहीं था, वो दूर खड़ी थी और उसमें एक लाइट ऑन थी। मैंने देखा उस लाइट के शेड में कोई शख्स खड़ा है और हमारी तरफ ही देख रहा, पर गौर से देखने पे पता चला कि वही शख्स था जो मुझे उस गैस स्टेशन के सामने झाड़ियों में खड़ा दिखा था और उसी क्रीपी अंदाज में वो वहीं पे खड़ा मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बिल्कुल वैसा ही था। ओफ मेरे खुदा, अदनान, हमें यहाँ पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटे का सफर हुआ था। इतना दूर वो गैस स्टेशन था, वो शख्स पैदल था, आसपास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। फिर वो शख्स यहाँ तक कैसे पहुंचा? जब बहुत गौर से मैंने उसको देखा तो वो शख्स पीछे हटा उस रोशनी से और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मैंने अपने दोस्तों को ये पूरी सिचुएशन बताई। सब एक ही कैंप में इकट्ठे हो गए। डर के मारे हमने सब ने एक साथ मिलके पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही हमने वहां से निकलने का फैसला किया। उसके बाद हम अभी भी ऐसे एडवेंचर करते हैं, लेकिन ऐसी वीरान जगहों पर रुकने में हमें आज भी डर लगता है। वो शख्स आज तक मेरे जहन में बस गया। पता नहीं वो कोई शख्स था या कोई और मखलूक, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी था बहुत अजीब था। अगर कोई इंसान होता तो इतनी जल्दी उस लोकेशन से इस लोकेशन पर नहीं आ सकता था। तो ये बात कुछ अजीब थी। इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि वो हो सकता है कोई और ही मखलूक थी। खैर, ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करने से होगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।